Hello everyone, today we are going to discuss some problems on KBL and KCL. From now onwards the lecture is in both Hindi and English. Before going before going through the problems, let's have a look on some basic rules. Problems solve करने से पहले हम कुछ rules देखेंगे. First one, when the voltages two voltage source are connected in series. फर्स्ट वन V1 एंड सेकेंड वन इज V2. जब भी दो वोल्टेज सोर्स एक साथ कनेक्ट होंगे सीरीज में तो इन्हें हम इक्विवेलेंट वी आर गोइंग टू राइट इट एज V1 प्लस V2. हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ V1 प्लस V2 लिख सकते हैं. सेकेंड वन, when the two voltage sources are connected with different polarities. जब भी दो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होंगे डिफरेंट पोलैरिटी के तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं. इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 जब V1 ग्रेटर देन V2 है. वी कैन राइट इट एज V1 माइनस V2 इफ V1 मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इज ग्रेटर देन V2 और इट इज इक्विवेलेंट टू V2 इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ V2 इज ग्रेटर देन V1. ये V2 के इक्वल भी हो सकता है जब V2 का मैग्नीट्यूड V1 के ज्यादा हो. थर्ड वन, जब दो वोल्टेज सोर्स एक दूसरे के पैरेलल में लगे हो. इसका इक्विवेलेंट होगा V1 इक्वल टू V2. When two voltage sources are connected in parallel, then their polarities and magnitudes must be same. That is V1 equal to V2. Fourth one, when the resistance is connected in parallel with V2, then we can neglect this resistance value and the equivalent value is equal to V. जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में लग रहा है वोल्टेज सोर्स के तो हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं और ये इक्विवेलेंट होता है एक वोल्टेज सोर्स के जिसका मैग्नीट्यूड V है. फिफ्थ वन, when the current source is in parallel with the voltage source, then we can neglect this current source and the equivalent circuit is equal to the voltage source. We can neglect I from this circuit. जब भी कोई करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में होगा तो हम उस करंट सोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इक्विवेलेंट जो सोर्स आएगा वो V के इक्वल आएगा. Similarly, the same rules for current source. When the two current source of magnitude I1 and I2 are connected in parallel, then the equivalent circuit will be equal to I1 plus I2. जब भी दो करंट सोर्स पैरेलल में लगे होंगे तो उनका इक्विवेलेंट सम होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के. That is I1 plus I2. Seventh rule. When the current source I1 is going upward and I2
is going downward in parallel, then equivalent is equal to I1 if magnitude of I1 is greater than I2, or it is equivalent to I2 if magnitude of I2 greater than I1. जब भी दो करंट सोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं जिसमें I1 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और I2 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो उनका इक्विवेलेंट I1 आ सकता है जब I1 का मैग्नीट्यूड I2 के ज्यादा हो, और ये I2 आ सकता है जब I2 का मैग्नीट्यूड I1 के ज्यादा हो. 8th rule. When the two current source of magnitude I1 and I2 are in series, then the equivalent is equal to I1 equal to I2. When the two current sources are in series, then this case is only possible if both the magnitude of current source are equal. Otherwise it doesn't satisfy KCL. जब भी कोई दो करंट सोर्स सीरीज में लगे होंगे वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का मैग्नीट्यूड I1 इक्वल टू I2, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी KCL पॉसिबल है. 9th रूल. When voltage source is in series with current source, when any voltage source of any magnitude is connected to the current source, then we can neglect this voltage source and the equivalent circuit consists of independent current source of magnitude I. जब भी कोई वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगा होगा किसी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के, तो उस केस में हम वोल्टेज सोर्स को हटा सकते हैं और खाली यहां पे करंट सोर्स आएगा. उसी तरह से जब भी किसी करंट सोर्स के सीरीज में कोई रेजिस्टर लग रहा है तो हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट जो आएगा वो आएगा आई मैग्नीट्यूड का करंट सोर्स. Whenever the resistor is connected in series with the current source I1, then we can neglect this resistor and the equivalent circuit consists of only I1 current. Now these are the rules. Now look at the problems. In this question, there are two current source of different polarities are connected, of different magnitudes are connected in series. Then what is the equivalent current source flow in the circuit? Option are 10, 20, 30, none. As you look into the 8th rule, when two current sources are in series, then the equivalent is possible if both the magnitude of current source are equal. But in this case, one magnitude is of 20 and other one is of 30. Then it will not satisfy KCL. Then the correct option is D. जब भी इस क्वेश्चन में क्या है कि दो करंट सोर्स लगे हुए हैं 20 और 30 एम्पियर के, तो हमसे पूछ रखा है कि टोटल करंट कितना फ्लो करेगा इस सर्किट में. तो रूल नंबर 8 देखेंगे, जब भी दो करंट सोर्स सीरीज में लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट तभी पॉसिबल है जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आए. पर यहां पे दोनों का इक्वल नहीं आ रहा है 20 और 30, तो ये KCL को फॉलो नहीं करता, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो ऑप्शन आ गया डी, नन. इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू करंट सोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर कनेक्टेड इन सीरीज. इन दिस केस द ऑप्शन इज नन ऑफ दिस बिकॉज although the magnitude is of same value but the polarities are of different. It is going upward, it is going downward, then it means it does not satisfy KCL. As for the current source to be in series, then the magnitude and both the direction must be same. That is, I1 direction is upward, I2 direction is upward, and both the magnitude are same.
but in this case magnitude are same, but the direction of I1 is upward and I2 is downward. That why it will not satisfy KCL. So again the answer is none of these. अब इस केस में क्या है कि एक 20 मैग्नीट्यूड का करंट सोर्स है, दूसरा भी 20 मैग्नीट्यूड का है, बट ये केसीएल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने रूल नंबर 8 में देखा था ये सेटिस्फाई तभी करेगा जब एक तो मैग्नीट्यूड उनका सेम हो और डायरेक्शन उनकी जब सेम होगी, पर यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये केसीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो करेक्ट आंसर आ गया नन ऑफ दीज. In this question, we have to find the current I across the 2 ohm resistor. As you see in the circuit, there is one 10 volt voltage source in parallel, and there is another 20 volt voltage source in parallel to the 2 ohm resistor. And in the any circuit, the voltage in parallel remains same. As you see in the previous rule, I have told then when two voltage sources are connected in parallel, then the equivalent is possible only if the magnitude of both the voltage sources are equal. But in this case, the magnitude is different, so it is not satisfying KVL. So option D is the correct answer. यहाँ पे इस सर्किट में हमें करंट निकालना है I 2 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस. पर यहाँ पे क्या है कि एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है और एक 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स पैरेलल में 2 ओम रेजिस्टर के. और हमने पढ़ा था कि वोल्टेज सोर्स पैरेलल में इक्वल होती है, और ये इक्वल पॉसिबल तभी हो सकता था जब दोनों तरफ 10 वोल्ट होता या दोनों तरफ 20 वोल्ट होता. तो ये केवीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया डी, नन ऑफ दीज. In this question, we have to find the equivalent capacitance between A and B. यहाँ पे हमें A and B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. अब इसमें इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द नोड बी C, because all the potentials are same, so we denoted the node as C. First of all, first step, what we need to do, we have to write the capacitance between A and B, 10 farad. It's our choice. Either we can take node C upward or we can take node C as downward. So I assume node C downward. So first case, I have to write I have to write capacitance between A and C. So A and C, there are one capacitance A and C, 3 farad. So I will denote it as 3 farad. This is node C. Again there is 1 farad capacitance between A and C. So I write it as 1 farad. Now there are no any capacitance between A and C. Now look at capacitance between B and C. In between B and C there is 1 farad capacitance, so I will write it as 1 farad capacitance. There is also 1 capacitance of 3 farad between B and C, so I will write it as 3 farad. हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले A और B के बीच का कैपेसिटेंस लिख देना है. उसके बाद हमें क्या करना है, ए और सी के बीच में कितने कैपेसिटेंस है वो देखना है. ए एंड सी के बीच में एक 1 फैरेड का कैपेसिटेंस है, एक 3 फैरेड का कैपेसिटेंस, तो हमने उसे ऐसे लिख दिया. उसके बाद हमने देखा बी और सी के बीच में एक तो 3 फैरेड का कैपेसिटेंस है, एक यहाँ पे 1 फैरेड का, तो वो भी हमने लिख दिया. अब ये हमारी चॉइस है, हम सी को ऊपर ले या नीचे ले. ठीक है. नाउ व्हाट वी डू, इन पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is equal to C equivalent equal to 1 plus 3. In parallel capacitance are added, so it is 4. Similarly it is also 4. Now again we can rewrite the circuit as
पैरेलल में कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट होता है सम के बराबर, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो हमने लिख दिया 3 और 1 का सम 4, ऐसे यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हमने ये सर्किट दोबारा से ड्रॉ किया तो ये आया। अब इन पैरेलल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन में 4 प्लस 4, देन इट इज इक्वल टू 16 अपॉन में 8 एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 2 फैरेड। सीरीज में क्या होता है, जब भी दो कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आता है पहला कैपेसिटेंस की मल्टीप्लिकेशन दूसरे से अपॉन में दोनों का सम। तो 4, पहला 4 है दूसरा भी 4 है, तो 4 इंटू 4 अपॉन में 4 प्लस 4, तो इक्विवेलेंट आ गया 16 अपॉन में 8, 2 फैरेड। नाउ वी कैन रीड्रॉ द सर्किट। It will be equal to 10 farad between A and B and 2 farad, this 2 farad. Then they are again in parallel, so equivalent between A and B is equal to 10 plus 2. तो correct answer is 12 farad. फिर हमने रीड्रॉ किया सर्किट, तो 2 फैरेड 10 फैरेड के पैरेलल में आ गया, तो उनका इक्विवेलेंट होता है 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, तो करेक्ट आंसर आ गया 12 फैरेड। तो हमें इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो नोड हमें डिफाइन है वो तो हमने डिफाइन कर दी, जो नोड हमारी डिफाइन है वो तो एज इट इज है। उसके बाद जो नोड डिफाइन नहीं है वहां सबसे पहले हमें नोड डिफाइन करनी है। उसके बाद हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं नोड के बीच में कैपेसिटेंस देख देख के। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन the node which are predefined, they are remain as it is, and we have to look on the other nodes. We have to let the other nodes and redraw the circuit and look at the capacitance between these nodes, so the circuit can be simplified in a simple way. In this problem we have to find the current I. How to solve such kind of a complex circuit? What I will tell you in the previous question. First of all, we need to define the nodes. So let's say I denoted this node as A, then this is also A, I will write it as B, then again this is also B, 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 this is also B. Then we can easily redraw the circuit. I have taken A upward and B as downward. So first of all write the component between the A and B. Let's start from this 6 ohm. This is A node, this is B node, 6 ohm. Again A to B 3 ohm. So I will write it here. Again A to B 3 ampere current, but it is its direction is from A to B, so I will write it as A to B. The direction must be carefully drawn. Again A to B 6 ampere current source, so I will write it as 6 ampere. Again A to B 2 ohm resistance, A to B 2 ohm resistance. Now look at carefully the direction of current I. It is going from A to node B, so I will denote it as this way. Now in my previous rule I have told you when the two current sources are in parallel, then the equivalent is equal to the sum of both. Then we can write it as 6 plus 3, that is 9 ampere. Again this is in parallel, so in parallel R equivalent equal to 6 into 3 upon में 6 plus 3, so it is equal to 2 ohm. Then we can redraw the circuit and we can redraw it as
9 ampere, direction is downward. There is 2 ohm resistance, current I, and again there is a 2 ohm resistance. Now we can use the current law, that is the resistance in both the direction are same. As you see the resistance are same, then 9 ampere is divided into 4.5 to this branch and 4.5 to this branch. Or you can write the current division rule, which tell I equal to -9 into में what current division rule tell the, if you are finding the current I in this branch, then you have to write the total current into में the resistance of opposite branch upon में total resistance of both the branch. So what is the total equivalent current? -9 into 2 upon में 4, that is 4.5 ampere. Or simply you can write it as 9 ampere current source, the resistance between the two branches are same, then equal current is distributed to the two branches, then the I is -4.5 ampere. अभी सर्किट में हमें क्या देखना है, मैंने बताया था कि सबसे पहले जो भी कोई भी ऐसा सर्किट आता है तो सबसे पहले हमें नोड डिनोट करनी है. तो हमने क्या करा, ये एज्यूम कर ली ये नोड ए है, ये सेम पोटेंशियल पे है, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों सेम है. ऐसे ये मैंने बी डिनोट करी तो ये भी बी आ गई, ये सारी बी आ गई, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल सेम है. ठीक है, आपकी मर्जी है, आप ए दे सकते हो इसे या इसे, तो अपोजिट वाला दूसरा दे सकते हो बी. तो मैंने क्या करा, ए और बी को, ए को ऊपर दिया बी को नीचे दिया. ये आपकी मर्जी है, आप बी को ऊपर दे सकते हो या बी को नीचे दे सकते हो. मैंने बी नीचे दिया है. तो हमने क्या करा कि ए से बी के बीच में देखा, ए से बी के बीच में 6 ओम रेजिस्टेंस है, उसी तरह ए के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैंने ये पैरेलल में लिख दिया. अब उसके बाद मैंने देखा ए और बी के बीच में 3 एम्पियर करंट. अब ए से बी में 3 एम्पियर करंट सोर्स जा रहा है. और यहाँ पे हमने करंट सोर्स की डायरेक्शन पे ध्यान देना है कि ये ए नोड से बी नोड की तरफ जा रही है 3 एम्पियर. ठीक है, तो हमने ए से बी में 3 एम्पियर दे दिया. ये सारी ए है, ये सारी बी है, तो ए से बी 3 एम्पियर. ऐसे ही ए से बी 6 एम्पियर करंट सोर्स जा रहा है, तो मैंने ये दे दिया 6 एम्पियर करंट सोर्स यहाँ से जा रहा है. उसके बाद मैंने जो प्रीवियस रूल पढ़ाए थे उसमें मैंने बताया था कि जब दो करंट सोर्स पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट आएगा उन दोनों का सम. अब दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे, अगर रिवर्स होती तो माइनस होते, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता उसमें से. तो ये टोटल आ गया 9 एम्पियर. अब मैंने देखा कि ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में सम. तो मैंने ये इक्विवेलेंट लिख दिया, 2 ओम रेजिस्टेंस 9 एम्पियर करंट सोर्स जो मेरा आया था, और 2 ओम उसके पैरेलल में जिसके अक्रॉस हमें आई करंट निकालना है. अब जब दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम है तो करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा. 4.5 इधर से चला गया, 4.5 इधर से चला गया. एक तो हो गया ये चीज. अगर हमें करंट डिवीजन रूल से देखना है तो आई की वैल्यू क्या आएगी, जिस ब्रांच में करंट निकालना है वो कैसे लिखते हैं हम, टोटल करंट मेरा 9 एम्पियर देना है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में देंगे. ठीक है, इनटू में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 ओम, वो मैंने 2 ओम लिख दिया, अपॉन में टोटल दोनों ब्रांचों का रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2 4, तो टोटल आ गया -4.5 एम्पियर. तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अब ये सर्किट है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है. हमने क्या जूम करा, जो आर ए बी रेजिस्टेंस है ए बी के अक्रॉस, वो हमने आर ए बी लेट कर दिया. अब जब हम इस सर्किट में देखेंगे तो आप ये चीज देखोगे कि 1 ओम ये कुछ सिमिलरिटी है इस सर्किट में. ठीक है, अब मैंने क्या करा, इतना सर्किट ये कट कर दिया.
अब जब आप इस सर्किट को यहां से देखोगे, यहां से देखने पे ये सर्किट एज इट इज ऐसा ही लग रहा है जैसे आरएबी की डायरेक्शन से हम देख रहे थे इंफिनिटी तक। ये सर्किट यहां से भी सेम है, यहां से भी सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं आरएबी, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है, सेम सर्किट है। यहां से देखोगे तो भी आपको आरएबी नजर आएगा, यहां से देखोगे तो भी ये सेम ही सर्किट नजर आएगा। तो ये आरएबी ले लिया। अब इसे मैं इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकता हूं, 1 ओम 1 ओम आरएबी, और यहां पे भी ये आ गया आरएबी। क्योंकि ये आरएबी रेजिस्टेंस आ रहा था। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट 1 इंटू आर ए बी अपॉन में 1 प्लस आर ए बी। ठीक है, अब जब आर ए बी निकालोगे तो आर ए बी क्या आएगा, आर ए बी इक्वल टू ये 1 ओम इसकी सीरीज में है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस आर इक्विवेलेंट, वो हो गया 1 प्लस आर ए बी अपॉन में 1 प्लस आर ए बी। तो ये हो गया 1 प्लस आर ए बी प्लस आर ए बी अपॉन में 1 प्लस आर ए बी। तो आर ए बी हो गया हमारा 1 प्लस 2 आर ए बी अपॉन में 1 प्लस आर ए बी। जब इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आर ए बी इंटू में 1 प्लस आर ए बी विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आर ए बी। तो आर ए बी स्क्वायर प्लस आर ए बी इक्वल टू 1 प्लस 2 आर ए बी। तो आर ए बी का स्क्वायर माइनस आर ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0। जब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आर ए बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी क्या है, -1, तो ये हो गया +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो -4 इंटू ए 1 है, सी -1 है, तो -1 हो गया अपॉन में 2 इंटू ए होता है 1, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट इसका। तो क्या आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या आया, आर ए बी इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। ये आ गया हमारा आंसर। हमेशा जब भी इन सर्किटों को सॉल्व करेंगे तो एक सिमेट्री होती है सर्किट में, हमें वही चीज यहां पे देखनी है कि इसमें सिमेट्री क्या बन रही है। इन दिस क्वेश्चन एज वी लुक द सर्किट we assume that the equivalent resistance between A and B is RAB. Then I cut the circuit from this place. Now when I look from this place, the circuit remains the same as it is seen from RAB side. Then I can say that the equivalent resistance is RAB. Then I redraw the circuit. Then 1 ohm is parallel to RAB, equivalent resistance is this. After solving equivalent resistance, then this equivalent resistance is in parallel to 1 ohm, which is equal to RAB. I can say that RAB is equal to 1, which is in series of equivalent resistance of 1 and RAB. So which is total R equivalent. Now when we solve, the answer become 1 plus root 5 by 2.
by solving the quadratic equation. We can't consider the negative value as the resistance value can't be negative. Now in this circuit, same as in the previous circuit, it is 1 ohm, 1 ohm. But now when you look into the circuit, it is 2 ohm, 2 ohm. Now we have to observe the symmetry. First we can let it as RAB. Now what we do, we divide the 2 ohm resistance as 1 ohm and 1 ohm. We divide it as series combination of two 1 ohm resistance. Now when we do this, we can observe that this is 1 ohm, this is 1 ohm. So we cut the circuit from this side. Now when we look from this side, we observe the circuit remain the same as it is from RAB. Now we rewrite it as 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, which is in series with RAB. RAB and 1 are in series, so equivalent resistance is equal to R equivalent is equal to 1 plus RAB. Now 1 plus RAB is in parallel with this 1 ohm resistance, so we redraw it as, we find equivalent resistance in parallel as R equivalent dash is equal to 1 into 1 plus RAB upon में 1 plus RAB plus 1. Then R equivalent dash is equal to 1 plus RAB upon में 2 plus RAB. Then RAB is equal to series combination of 1 ohm plus में R equivalent dash. Then RAB is equal to 1 plus RAB upon में 2 plus RAB. Which is equal to RAB 2 plus RAB plus 1 plus RAB upon में 2 plus RAB. On taking this to left hand side, we get 2 RAB plus RAB square is equal to 3 plus 2 RAB. Now 2 RAB cancel, RAB is equal to under root 3. This is the right answer. अब इस सर्किट में हमने क्या करा, जैसे प्रीवियस सर्किट में क्या था कि 1 ओम था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 1 ओम की जगह 2 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है. तो हमें इस सर्किट में एक सिमेट्री ऑब्जर्व करनी है कि प्रीवियस केस में क्या था, हमने इसको RAB लेट किया, सेम यहाँ पे भी RAB लेट किया. अब क्या हुआ, मैंने क्या करा, जब ये देखा 2 ओम को मैंने क्या करा, 1 ओम में डिवाइड कर दिया, और जब सर्किट को इसके बीच में से कट किया तो मैंने देखा जो RAB से हमें शो हो रहा है वही हमें यहां से भी शो हो रहा है. तो हमने इस पूरे को मान लिया RAB. जब मैंने RAB लिखा तो 1 ओम RAB के इक्विवेलेंट में आया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 1 प्लस RAB. अब जो ये 1 प्लस RAB है वो इसके पैरेलल है इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के, तो R इक्विवेलेंट डैश आया 1 इंटू R इक्विवेलेंट जो है 1 प्लस RAB अपॉन में 1 प्लस RAB. जब मैंने ये सॉल्व करा तो मेरा R इक्विवेलेंट आया 1 प्लस RAB अपॉन में 2 प्लस RAB. अब RAB क्या है हमारा, 1 ओम इंटू में सीरीज में R इक्विवेलेंट डैश, यानी जो ये सर्किट है इसके इक्विवेलेंट है 1 ओम, तो RAB क्या हो गया 1 प्लस जो ये इक्विवेलेंट सर्किट है वो हुआ 1 प्लस RAB अपॉन में 2 प्लस RAB. जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई RAB इक्वल टू √3 एंड दिस इज द राइट आंसर.